have to first categorize the aldehyde, ketone. We have to categorize the aldehyde, ketones, and carboxylic acid. First, we have to study about aldehyde and ketones. Now, if we have a R, C, double bond O, H. If this is a CHO group is there, this CHO group Aldehyde. shows up aldehyde. If we have a R, C, double bond O, R or R dash, this group Ketone. is nothing but as a ketone. All of you know that aldehyde and ketones are there. The carboxylic acid, that is the one another category in which we have a R, C, double bond OH. So you have to see that there is a one Carboxylic. R carboxylic acid. That is known as a carboxylic acid. This is known as a carboxylic acid. So today we have to study about aldehyde and ketones. Okay. Now aldehyde, how the aldehydes are prepared, what are the physical properties, what are the chemical properties of aldehyde and ketones are there, and which type of the reactions they have to undergo, nucleophilic or electrophilic substitution or nucleophilic, depending upon this, what is the category. Carboxylic acid, that is another topic in this chapter, so we have to study it after aldehyde and ketones. Now, first I have to start about the aldehyde. Now, how to give a name of aldehydes? Now, these aldehyde and ketones, these are very important for us. हमारे पास जितने भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, सैलिसिलिक एसिड्स की बात करते हैं हम, सैलिसल्डिहाइड की बात करते हैं, एस्टर की बात करते हैं, वेनिलिन की बात करते हैं. All these are the aldehydes which are used in our daily life also. Okay, so they have to use it as a food product. It is also used in a pharmaceutical. So it means we can say that all these aldehydes and ketones we can use it in our daily lives are there. Like I'm giving an example, adhesive. All of you heard about adhesive, paint, perfumes, plastics, all these materials, they are prepared. So raw material, aldehyde and ketones used in it. Okay, I'm giving an example, vanillin, that is a salicylaldehyde. These are the two important compounds are there which are mainly used in our pharmaceuticals. Okay, so it means in our food industry as well as in our pharmaceutical, these are very important compounds are there which is used in our daily life. Now, how to give the name of these compounds? What is the nomenclature? How to give the IUPAC name of these compounds? Okay. So now next topic is, that is a IUPAC nomenclature. Okay. First, we have to start with the nomenclature of aldehyde and ketone. So write a heading, nomenclature. Nomenclature. Okay. So nomenclature. Common name. Common name we have to use it aldehyde. कॉमन नेम में जब भी यूज करेंगे तो हम एल्डिहाइड वर्ड यूज करते हैं. ठीक है, एल्डिहाइड जैसे CH3 ग्रुप है तो वहां पर अगर हमारे पास कुछ भी हमने वर्ड लगाया तो उसके लिए पीछे हम वर्ड कॉमन लगा देते हैं एल्डिहाइड, वो कॉमन नेम होता है. बट वी हैव टू जनरली यूज अ IUPAC name. In IUPAC name, that is the one important thing for aldehyde. We are always used in aldehyde for common name. For IUPAC name we have to use a al. All of you know that al word is we have to use by replacing Yes, the ma'am. e. ठीक है, e को हम रिप्लेस करके अल लगा देते हैं तो वो कहलाता है हमारा अल. लाइक दिस, इफ वी हैव अ कंपाउंड लाइक अ CH4, ये हमारा होता है मीथेन. लेकिन अगर हमने इसका एक कार्बन का बना दिया HC डबल बॉन्ड OH, एक कार्बन का है, मीथ तो होगा Methanol. लेकिन मीथेन से क्या बन जाएगा, ये मीथेनल. मीथेनल, ई Formaldehyde. हटके ई कर गया Formaldehyde. और उसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड. यस, दिस इज Formaldehyde. C2H6. C2H6 होता है हमारा, C2H6 इथेन होता है. इसका हमारे पास जो एल्डिहाइड बनेगा CH3CH2. Ethanol. दिस इज Ethanol. इथेनल. यस, दिस इज इथेनल. इथेनल, ठीक है, दिस इज इथेनल और इसे एसिटल्डिहाइड कहते हैं. दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड एंड दिस इज एसिटल्डिहाइड, कॉमन नेम. Okay, so it means we are replacing the e with a al. That is a one common name. और आप देख रहे हैं अल के अंदर ये जो कार्बन है ये हमने काउंट कर लिया. बट समटाइम्स, और जितना भी डबल बॉन्ड हो या कुछ हो हम उसकी पोजीशन देंगे, लेकिन लास्ट में हमारा अल लगेगा. दैट इज एक्ट एज ए सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप है. इफ वी हैव अ कंपाउंड लाइक दिस CH3 CH2 CH double bond CH and we have a CH2. Now what is the name of this compound? Tell me.
1, 2, 3, 4, 5. Okay. Give me a name of this compound. How many carbon are there? 5. तो पेरेंट चेन तो होगी 5 की, दैट इज ए पेंट. ठीक है, यहाँ से शुरू होगी. पेंट 2 इन 1 अल. इन अल 1 को लगाते नहीं है. अल इज ऑलवेज एट द फर्स्ट पोजीशन. अल जो है वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही होता है, तो कभी भी हम अल की पोजीशन नहीं देते. अल इज ऑलवेज देयर. ठीक है, अल का मतलब ये है कि वो फर्स्ट पोजीशन पे. तो इट मींस वी हैव टू गिव अ प्रायोरिटी टू अ एल्डिहाइड. ओके, सो नंबरिंग स्टार्ट होगी कहां से? होगी हमेशा अल से. बट समटाइम्स if we have a compound like this, इसमें लगा दिया CH. Now what is the name of this compound? Now tell me the name. Cyclohexanol. Cyclohexanol. Okay. Others? Cyclohexanol. Cyclohexanol. Okay. Others? कुछ और भी बताएं आंसर. सब ये एग्री है साइक्लोहेक्सेनल से? टेल मी बेटा, इज यस और नो तो बोल सकते हो. ऑल ऑफ यू आर एग्री? यस मैम. साइक्लोहेक्सेनल. ओके, लेकिन इसमें साइक्लोहेक्सेनल, अब आप अगर इसे साइक्लोहेक्सेनल कह रहे हो तो आपके पास यहाँ कंपाउंड में साइक्लोहेक्सेन तो आ गया 6 कार्बन के लिए. अब जब आपने अल कहा, अभी तक आप जब ये अल कह रहे थे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपने ये अल वर्ड यूज करा तो आपने इन दोनों कार्बन को काउंट कर लिया था और फिर अल दिया था. लेकिन अगर आप साइक्लोहेक्सेन कहते हैं तो ये 6 कार्बन की और आपने अल लगा दिया एल्डिहाइड, ये वाला कार्बन तो काउंट ही नहीं हुआ. ध्यान से सुनो मेरी बात बेटा, और ध्यान से सुनो करणदीप. अभी तक मैं कह रही हूँ व्हेन वी आर यूजिंग अ अल, वी आर काउंटिंग ऑल द कार्बन. 1, 2 दोनों कार्बन को काउंट करके हमने कहा इथेनल. लेकिन अगर आप इसे कहते हैं साइक्लोहेक्सेनल, तो हेक्सेन मतलब आपने ये 6 कार्बन काउंट करे खाली, ये कार्बन तो आपका रह गया ना. यस और नो? टेल मी बेटा, यस और नो? यस मैम. ये कार्बन काउंट नहीं हुआ. ऐसे केसेस जहां पर कार्बन काउंट नहीं हो पा रहा है, वहां पर हम वर्ड लगाते हैं कार्बेल्डिहाइड. तो हम इस कंपाउंड को नाम देंगे साइक्लोहेक्सेन. ठीक है, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड. हेक्सेन पूरा लिखेंगे और वर्ड लगाएंगे कार्बेल्डिहाइड. कार मतलब हमने कह दिया ये कार्बन हो गया, कार्बेल्डिहाइड. कार्बेल्डिहाइड. ओके, so that is a cyclohexane carbaldehyde. So when we have used the word carbaldehyde, when we have not counted the carbon in a chain, parent chain. Tell me, this point is clear? Tell me, this point is clear to all of you? Yes, okay, clear this one? Okay. Now I'm giving one more example. So it means clear कि अल कब लगाएंगे और कार्बेल्डिहाइड कब लगाएंगे. Now I am having a one compound. एक मैं कंपाउंड लेती हूँ यहाँ. CH2, 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 CHO, CH2, CH2. Now, can anyone give a name of this compound? Ma'am, 1, 2, 3 try. Ma'am, 1, 2, 3 try al propanol. Try al. Try al. Al तो starting में आ ही सकता है. It is not a prefix. It is a suffix. मैम ट्राई प्रोपेनल. Ma'am, Try नहीं, no. अगर आप ट्राई प्रोपेनल कह रहे हैं तो प्रोपेन के लिए आपने ये 3 कार्बन का काउंट करे, और अल के लिए तो मैंने क्या कहा है, अल इज ओनली यूज्ड एज अ सफिक्स, नॉट अ कार्बन नंबर. मैम ट्राई पेंटेन? नो 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 नो. Ma'am, 3 एनीवन? Ma'am, कार्बेल्डिहाइड 1, 2, 3 कार्बेल्डिहाइड prop carbaldehyde. नो नो नो. सबसे पहले बेटा आप रूल भूल रहे हैं. आईयूपैक का फर्स्ट रूल होता है काउंट द पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन. CHO, CH2, CH2, CH2.
कितनी CH2 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 only 3 carbon chain is there, longest carbon chain. Yes, ma'am. Yes, ma'am. only longest carbon chain है 3 की, क्योंकि आपके लिए ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, एंड दिस इज आल्सो अ फंक्शनल ग्रुप. तो ऑल 3 आर द फंक्शनल ग्रुप. अगर आप प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको भी दे सकते हैं, इसको भी, इसको भी, तो आप प्रायोरिटी इसको किसी को नहीं दे रहे. तो आपके लिए 3 कार्बन की पेरेंट चेन है, 1 2 and 3, and 1 2 3 means propane. This is propane. उसके बाद मैं लिखती हूँ 1 2 3 ट्राइकार्बोल्डिहाइड. यस. मैम ये तो बोला था. कहाँ बोला था? मैम आकाश, बहुत लोगों ने मैंने तो बोला था. मैम Yes, ma'am. प्रोपेन लास्ट में बोला था बस. मैम बोला था ये. लास्ट में. यस, प्रोपेन लास्ट में बोला था. आप लोग बोले थे ट्राइकार्बोल्डिहाइड 1 2 3 प्रोपेन. दिस इज रॉन्ग. कार्बोल्डिहाइड आपका फंक्शनल ग्रुप है. इट इज ऑलवेज इन अ सफिक्स, नॉट इन प्रीफिक्स. आकाश, बात कह रहे हो सही, Yes, लेकिन ma'am. जब प्रॉपर Yes, ma'am, yes. स्कीम में फिट नहीं करोगे, दैट इज रॉन्ग. ओके, is it clear? So this Yes, is the ma'am. name of the compound, propane 1 2 3 tricarbaldehyde. Okay, now I am giving us some compound. Try to write the name of these compounds. Okay, नहीं, अच्छा चलो एक दो और दे रही हूँ मैं आपको. एरोमेटिक, सॉरी, एरोमेटिक भी बता दूँ आपको. या लिख लिया सबने इसका नाम? हाँ, बोलो. Ma'am, if we count the carbon of CH2 group and take the longest chain as 5 carbon, I think yes. Just हर्षित, मुझे उम्मीद थी कि आप पूछेंगे ऐसा. 1 2 3 4 5 अगर आप ये काउंट करते हैं तो आपने 2 Longest. एल्डिहाइड को काउंट करा. दिस इज नॉट अ लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि 2 जो एल्डिहाइड हैं, आप एक को पोजीशन दे रहे हो 1 और एक को दे रहे हो 5. आई टोल्ड यू, एल्डिहाइड ऑलवेज एट अ फर्स्ट पोजीशन. Okay, ma'am. The aldehyde as a fifth position. Okay. Ma'am, I thought that I will write it as alcohol group. No, not at all, Harshit. Alcohol Oh. कहीं से नजर नहीं आ रही. Ma'am, if we Okay. count the carbon of CH2, then OH is left, then we can write it as. No. This is CHO is a whole group. We cannot count a carbon in a chain and OH as a alcohol. Wrong way, Oh. Harshit. Okay. Okay. And al Okay. is always getting a first position. Now I'm giving us some more examples of aromatic. Like if we have a compound, benzene contains CHO. Now yes, what is the name of this compound? Tell me. Benzaldehyde. Benzaldehyde. Then carbonaldehyde. Benzaldehyde. Benzene carbonaldehyde. Benzene carbonaldehyde. बेंजीन कार्बोल्डिहाइड, क्योंकि एक और सी है. Benzene carbonaldehyde. ये भी बिल्कुल ठीक है आपका, कोई गलत नहीं कर सकता. और we can write it benzenal. बेंजेनल भी आजकल हमने नाम कंपाउंड का लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर हम इसको बोलते हैं तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द कंपाउंड दैट इज ए. हाँ बोलो बेटा. मैम बेंजीनल के साथ ये दिक्कत नहीं आएगी कि बेंजीन में 6 हैं और हमारा बेंजल्डिहाइड. हाँ मैम एक और. यस मैम. Sorry, benzaldehyde. Okay, benzaldehyde. You can use a benzaldehyde, not benzaldehyde. Okay, so benzene carbonaldehyde बोलो या benzaldehyde, that is the same. Okay, अब मैं आती हूँ इसमें कंपाउंड में. One this part CHO and NO2. Now give the name of this compound. Ma'am, P. मैम 4 Carbon. 4 नाइट्रो 4 बेंजीन nitrobenzyldehyd. कार्बोल्डिहाइड. और ये ठीक है, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड और 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बोल्डिहाइड. Carbonaldehyde. Yeah. बिल्कुल ठीक है. ओके, अब मैं आपको दे दूँ कंपाउंड. मैम इसका नाम क्या होगा नाइट्रो वाले का? 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड. मैम पैरा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड लिख सकते हैं ऐसे?
बिल्कुल लिख सकते हैं। पैरा इज ए ऑल्सो वन पार्ट जिस स्पोर्ट लेते हैं, लेकिन IUPAC में नंबरिंग देते हैं। ऑर्थो और पैरा IUPAC में। अच्छी, अब नाम इसमें लिखते हैं। ऑर्थो बोल सकते हैं या फिर 2 बोल सकते हैं, या तो नहीं, ऑर्थो बोल लो या फिर 2 बोल लो। ऑर्थो नहीं, बेंजीन नहीं है ये बेटा। अच्छा, बेंजीन मैम नहीं, ये ओके। वो साइक्लोहेक्सेन हाँ, कार्बन 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। वेरी गुड, वेरी गुड। 2 नाइट्रो साइक्लो कार्बोल्डिहाइड। हेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, बिल्कुल ठीक है। Clear? So it means now the concept of this is clear. Okay, this is about your aldehyde. Similarly, we can use a for ketone. Ketones के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? on. कीटोन के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? on. क्योंकि मैं कीटोन और इसके दोनों के आपको एक साथ दूंगी क्वेश्चंस. ओके, नाउ कीटोन्स. कीटोन्स के लिए वी आर यूजिंग अ वर्ड on. ई हटा के हम वर्ड यूज करते हैं on को. ओके, और जब हमारी प्रायोरिटी लिस्ट आती है कि अगर इफ द कंपाउंड कंटेन अ कीटोन एज वेल एज एल्डिहाइड बोथ, वी हैव टू गिव अ प्रायोरिटी टू एल्डिहाइड. मैं बार बार कह रही हूँ, एल्डिहाइड ऑलवेज गेट अ फर्स्ट पोजीशन एंड देन कीटोन इज यूज्ड एज ए प्रीफिक्स, बट एल्डिहाइड इज ऑलवेज यूज्ड एज ए सफिक्स. ओके, तो मैं पहले कीटोन के लिए देती हूँ. हाउ टू गिव द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? CH3 CO CH2 CH2 CH3. Now, what is the name of this compound? Ma'am, pentane. Yes, मैम pentane. पेन 2 on. मैम ब्यूट। Yes. Pentane के लिए AN, क्योंकि यहाँ पर E हट जाएगा. Pentane 2 on. on. ठीक है. All of your rules, you know the rules. Pentane पूरा नहीं लिखेंगे. E is replaced by the 2 on. Okay. We have to give the position of a ketones. Now, if we have a compound, yes. मैम आपने बोला ना कि वो एल्डिहाइड पहले वो तब होगा ना जब वो दोनों हैं. अगर बिल्कुल, दोनों जब हैं तो एल्डिहाइड को प्रायोरिटी दी जाएगी और कीटोन यूज एज ए सफिक्स. ओके, और वैसे भी अगर आपके पास कंपाउंड है, ईन है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल है, नंबरिंग विल बी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ एल्डिहाइड. वी हैव टू गिव अ प्रायोरिटी टू एल्डिहाइड्स. प्रायोरिटी लिस्ट की थी ना 11th में. कार्बोक्सिलिक एसिड हाईएस्ट पोजीशन पे, देन एल्डिहाइड, आफ्टर दैट कीटोन, दिस एंड दिस लास्ट में जाते थे. ओके, सो वी हैव टू फॉलो द सेम प्रायोरिटी लिस्ट. CH3 CH2 C double bond O CH2 CH2. Now give the name of this compound. Give the name of this compound. 3-oxopentanol. 3-oxopentanol. Very. ऑक्सो क्यों आया मैम? बेटा ये जो कीटोन है जब प्रीफिक्स में जाता है तो इट बिकम अ कीटोन और ऑक्सो. जो ऑन होता है वो दैट इज ए सफिक्स. कीटोन जब सफिक्स की तरह यूज होगा तब ऑन लगेगा, बट कीटोन जब प्रीफिक्स बन जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सो में या कीटोन. आप इसको कह सकते हो 3 कीटोन या 3-oxopentanol. ओके. Is it clear, Karandeep? Okay. So the name of this compound is 3-oxopentanol or 3-ketopentanol. 3-oxopentanol or 3-ketopentanol. कुछ भी कह सकते. Is it clear about ketones and aldehyde? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now I am giving us some questions. Okay. So write the name of those compounds. Okay. So question लिखिए. Write the IUPAC name of. क्वेश्चन लिखिए सब जल्दी से. राइट द IUPAC नेम ऑफ गिवन कंपाउंड. राइट IUPAC नेम ऑफ गिवन कंपाउंड. कंपाउंड दे रहे हैं IUPAC नेम. फर्स्ट कंपाउंड इज CH3 CH3 CH bracket OCH3 then CH2. Number 2 CH2 double bond CH CH2. Number 3
benzene with CH2, CH2. Fourth compound is benzene, Br, CH2. Fifth compound, this is cyclohexane with double bond O, and there is C. Sixth compound is CH3 whole twice C double bond O, C H C O C H T. Continuity. Seventh is CH3 2 CHCH4. Eighth is CH3 CH CH3 C double bond O, CH CH3 CH2. Now these are the 8 compounds are there. First try to give the name of all these compounds. I am giving the 5 minutes to all of you. मैम इन 7th पार्ट CH3 का डबल बॉन्ड है CHCHO के साथ। होगा ना? क्या होगा ना शायद? नहीं क्योंकि दो सिंगल ही है, सिंगल ही है ना? हाँ वही whole डबल twice है वो। No double bond.
This is a single bond. CH3 2 CH CHO. मैम डन. Okay. मैम एक डाउट था. बोलो बेटा. मैम ये OCH3 वाले को कैसे नेमिंग करेंगे? OCH3 मिथॉक्सी. इधर भूल गए. ओके मैम, ओके ओके ओके. OCH3 से मिथॉक्सी बेटा. ये थोड़ी है कि आप आज एल्डिहाइड करेंगे तो अल्कोहल्स को भूल जाओगे या किसी को भूल जाओगे. मैं सबको कंबाइन करके दूंगी अभी क्वेश्चंस. ओके Are you मैम. paying? अगर आपने कर लिया nomenclature, it means it can be from anywhere. Shall we discuss? All of you have done? Yes मैम. Yes, ma'am. Okay. 2. We are 30. I want to listen the 30 voices. If you are all of you have done or not. Then we will discuss one by one. Done, ma'am. Done. 3, Done. 4, Done, ma'am. 5, 6. Others? Others? And मैम. मैम थर्ड वाला कैसे होगा एक बार बता दो. अभी डिस्कस कर रहे हैं बेटा. सब डिस्कस कर रहे हैं. You have done all except third. मैम ने करा है वो भी, बट मुझे उसमें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या लिखा है. Now we are discussing. ठीक है. अभी वेट कर रही हूँ मैं. अभी सबने कर लिया है. मुझे एक्नॉलेज कर दें. Then I have to start. Yes, others? Yes. Shall I start to discussing all the questions? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay, yes. First question. First question is that is a CH3 CHO CH3 CHO. Now, what is the name of this compound? 2-methoxypropane. Propanol. Methoxypropanol. Phenol. Yes, Good, ma'am. very good. 2-methoxy. Yes, मैं यहाँ सामने लिखती हूँ जितना स्पेस है मेरे पे. 2-methoxy. जिसने कर लिया है तो वो चेक भी कर लेंगे कि व्हाट इज दिस, और किसी को अगर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा मुझसे. 2-methoxypropanol. ओके. 2-methoxypropanol. Is it clear? Now come to a second. This is a CH2 double bond CH-CHO. Now what is the name of second compound? Prop2. Prop2enol. Yes. Prop2enol. Prop2enol. Yes. Enol. Prop2enol. Okay. Al के लिए position नहीं देते. This is Prop2enol. Good. Now the third one. Container 2. Ma'am, यहाँ नाम आएगा इसका. Ma'am, benzene 1,2 dicarboxylate. बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक है. बेंजीन 1,2 डाइकार्बोल्डिहाइड. बिल्कुल ठीक Yes, बोला. ma'am. ऐसी करा. Benzene. Yes, this is benzene 1,2 डाइकार्बोल्डिहाइड. मैम से 3-bromo आ जाएगा. 3-bromo 3-bromo cyclohexane carbondiide. 3-bromocyclone. Three कैसे आ जाएगा? bromo साइक्लो है. साइक्लो है बेटा.
मैंने benzene बना दिया था। साइक्लो ना यही तो देखना है कि हमने बेंजीन लगाया या साइक्लो हेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। कार्बोल्डिहाइड को यूज लगाना करना आना चाहिए। नाउ फिफ्थ वन, जल्दी से बताइए fifth का नाम। मैम 2-methyl cyclohexanol। हेक्सेनॉल। हेक्सेनॉल। 2-methyl, बिल्कुल 2-methyl cyclohexanol। हेक्सेनॉल, ओके। और यहाँ से Yes, नंबरिंग ma'am. स्टार्ट होगी, क्योंकि जहाँ पे भी आपको बताया कि if there is a cyclo compound we have to start a numbering with this। प्रायोरिटी इसको दी जाएगी फंक्शन ग्रुप को 1, तो ये 2 पे आ गया 2। Now sixth compound, what is the name of sixth compound? 4-methyl pentene 2-on. Yes, 4-methyl pentene 2-on। yes, 4-methyl स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी ये पता लग पाएगा। Yes, ma'am. So OCH3 में डबल बॉन्ड आएगा। बिल्कुल 3-methyl pent 3-ene 2-on। सेवेंथ वाला बताइए, सेवेंथ वाला CH3 प्रोपेनल 3-methyl प्रोपेनल। ठीक है 3-methyl नहीं, सिंपल प्रोपेनल। ओके 1 2 3 यहाँ पे आया CH3 1 2 3 2-methyl प्रोपेनल 1 2 3 CH3 2 है, बताइए ये बनेगा आपका 2-methyl प्रोपेनल। हम 2-methyl होगा। यस 2-methyl प्रोपेनल। आज भी क्लियर हुआ? यस मैम, वो एक जगह गलती कर दी। ओके, ये तो गलतियां निकालनी है। लास्ट वाला कंपाउंड, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 4-methyl 3-pentane 2-carbaldehyde। हाँ हम 2,4-dimethyl pentane 3-on. 2,4-dimethyl pent 3-on। 2,4-dimethyl pent 3-on। Pent 3-on. yes, good 2,4-dimethyl pent pentane 3-on। ओके, इज इट क्लियर? कोई मैम, डाउट हो किसी को? मैम वो CH3 है या CHO है हमारे मतलब ओन के साइड वाले में? CH3 है, CH3, दिस इज CH3। वो CHO लिख लिया। ओके मैम, हमने सोचा CHO। यस मैम। नहीं दिस इज CH3, तभी आप लोग गलत बोल रहे थे, अल बोल रहे थे। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर। दिस इज CH3 2,4-dimethyl pentane 3-on। ओके, इज इट क्लियर अबाउट IUPAC नेम तक क्लियर है सबको? टेल मी। या यस मैम। ठीक है, जो ये आपने किया है, अब इसके बेस पे मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन की स्लाइड दिखाती हूँ। ओके, ना इसको हाइड करा हमने। नाउ आई एम गिविंग द स्लाइड aldehyde and ketones। मैम बोलो बेटा। which has a higher priority double bonds in triple bond or functional group like HO and CO double। ना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कह रहे हो या एल्डिहाइड और डबल बॉन्ड में पूछ रहे हो? यस मैम, aldehyde और डबल बॉन्ड। एल्डिहाइड always get a 1 position। ओके, now I have divided your videos aldehyde ketones in 3 parts। आप देख रहे हैं aldehyde ketones का first part, that is the introduction of aldehyde, nomenclature of aldehyde, each and every। Okay, so this is the first part of the aldehyde and ketones, nomenclature, preparation and physical properties। ठीक है, that is a just first part of this। Okay,
Now, shall I move to our next slide? Um, part 2 पे आते हैं. This is our outline of the ketones, aldehyde and ketones. We have given an introduction. Now, what are the aldehyde and ketones are there? Nomenclature of aldehyde and ketones, structure of the carbonyl compound, and after that the preparation of aldehyde and ketones. Different methods are there and physical properties of aldehyde and ketones. That is the outline of this chapter of aldehyde and ketones. Now, this is a just introduction. Aldehyde and ketones. Widespread in plant and animal kingdom. That is the one important news. जैसे मैंने कहा था, in our daily life, it is mainly. They play an important role in a biochemical process of life. They add a fragrance and the flavor to the nature. Have very pleasant fragrance, like a vanillin from a salicylaldehyde. And this is a ये cinnamon से आती हैं. This is on a meadow sweet are there. This is from a vanilla. Okay, so all these are mainly used in our food flavors. Add as a food flavor. What are aldehyde and ketones? Actually, में aldehyde and ketones हैं क्या? Ma'am, we have to Aldehyde note. and ketones. No need to note down. मैं ये सारी स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दूंगी. ओके, जो हमने अभी पढ़ा है मैं उसको ही जस्ट एज ए रिवीजन कर रही हूँ. ओके, aldehyde and ketones are the carbonyl compounds which contain C double bond. In aldehyde, carbonyl group is bonded with a hydrogen, and in ketones, this double bond is bonded with a 2 carbon atoms or with any alkyl groups. Okay. Now, what is the method of the nomenclature of aldehyde and ketone? The common name of aldehyde derived from a common name of the corresponding carboxylic acid by replacing the IH with the aldehyde. Like a CH3CHO, this is a acetaldehyde. Benzene पे CHO है, that is a benzaldehyde. यहाँ कंपाउंड हमारे पास है 1 2 3 4 4 कार्बन है. 4 कार्बन में अच्छा ब्रोमो नहीं है, यहाँ नाम गलत आ गया. बीटा ब्रोमो, बीटा पोजीशन पे यहाँ बी आ रहा है, ये लगा नहीं, सॉरी गलती से हो गया. तो बीटा पे ब्रोमो है, तो ब्रोमो. एंड अगर हम आयुपैक के आएंगे तो 1 2 3 3 ब्रोमो ब्यूटेनल कहते हैं. कॉमन नेम है तो बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल एल्डिहाइड. ब्यूटाइल मतलब हो गया 4 कार्बन. So this is a butyl aldehyde. This is a common name. The method to write a common name. But for a nomenclature of aldehyde and ketone, IUPAC, we have to replace the E word by the suffix -al. Like this, ethanol. This is 4-bromo-3-methyl heptanol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbon are there. First position is for a CHO 1, 2, 3, 4. 4-bromo, alphabetically bromo को पहले बोलेंगे. 4-bromo-3-methyl heptanol. If the aldehyde group is attached to the ring, then the suffix carbaldehyde is added in the full name of cyclohexane. Like this. This is the cyclohexane carbaldehyde. We did. हमने ये सब किया भी. If the carbon is not counted, now draw the structure corresponding to the following aldehyde and ketone. Like a heptanol. Heptanol मतलब कितने कार्बन है? 7 कार्बन. It is saturated, so we have to draw 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 कार्बन पे अल लगाना है. तो वहां CHO की जगह कार्बन इज this is double bond with H. This is known as a bond line formula. All of you know about a bond line formula? Yes, tell me. Bond line formula 11th में किया था आप लोगों ने? Tell me yes or no. Yeah, so this is the bond line formula. Okay. Now draw the structure of the corresponding polyaldehyde and ketone. 3-hydroxy 2,2,4 trimethyl pentanol. It means total carbon chain कितने की है? 5 carbon. This is saturated, so we draw the 1, 2, 3, 4, 5 carbon zigzag motion में. 3 पे हाइड्रोक्सी है तो थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप लगा देंगे. और 3, 2, 2, 4 2 पे आपने लगाया 2 मिथाइल ग्रुप और 4 पे मिथाइल ग्रुप लगाया. This is known as a 3-hydroxy 2,2,4 trimethyl pentanol. Okay, so this is the structures. How to draw the structures? If you know the name, you are able to draw the structure. Now first, draw the structure of 3-hydroxy 2,2,4 trimethyl pentanol. All of you, first draw the structure. Simple कीजिए, no bond line formula. No bond line formula, simple structure कीजिए. Hurry up. 3-hydroxy 2,2,4 trimethyl pentanol. Draw the structure of this compound.
Hurry up. Done, ma'am. Yes, draw. Done. Pentanal means 5 carbon. 5 carbon, थर्ड कार्बन मैम पे OH ग्रुप. फर्स्ट पे अल, फिर थर्ड पे OH, फिर 3 वाले पे 3 मिथाइल. ठीक है, 2 पे 2 मिथाइल और 4 पे 1 मिथाइल. ठीक है, हाँ वही मैम. दैट इज स्ट्रक्चर. ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है स्ट्रक्चर, लेकिन ये स्ट्रक्चर वही बना हुआ है, जो कंपाउंड था वही कार्बन है. नाउ वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर. दिस ये कंपाउंड है. नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कंपाउंड का नाम क्या है? जरा देखिए मैम हम जो Yes, बेटा. 3,3 डाइमिथाइल पेंटेनल. एक मिनट आकाश. करणदीप क्या बोल रहे हो आप बेटा? मैम जो आपने 8 क्वेश्चन दिए थे नेमिंग के, उसके बाद मैम नेटवर्क चला गया था, क्या करा है? मैं स्लाइड दिखा रही हूँ, आपके सामने आ रही है स्लाइड? यस मैम. हाँ, तो मैं ये सब स्लाइड दिखा रही हूँ. जो जो अभी कराया है मैंने उसी की स्लाइड्स हैं. आप स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ कर रहे हैं. ओके मैम. ओके, तो यहाँ पे कंपाउंड है 1 2 3 4 5. 5 कार्बन है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? मैं नाम कह रही थी आपको, क्या नाम होगा इस? 3 डाइमिथाइल पेंटेनल. 3 डाइमिथाइल पेंटेनल. तो आपका ये स्ट्रक्चर होता है. दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर. दिस इज नोन एज ए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. और इसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ नाम दे दिया 3 डाइमिथाइल पेंटेनल. ड्रॉ, अगर नाम देने आ गए तो यू आर एबल टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर. ठीक है. नाउ दीज आर द कॉमन नेम ऑफ द कीटोन्स आर देयर. दिस इज एसीटोन, कॉमन नेम. This is acetophenone. This is known as a propionophenone, and this is known as a benzophenone. All of you know when the two benzene are there, this is benzophenone. Benzene और CH3 acetophenone. This is simple acetone. और अगर आपके पास यहाँ ग्रुप इथाइल लग जाता है, that is known as a propionophenone. This is common name of all the ketones are there. But these are the name of our ketones by replacing a on. हमने on word को replace कर दिया, तो उसके according हमने यहाँ नाम किया. Now ये नेम देखिए 1 2 3 अभी कराया था. 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन फ्रीऑन. एंड दिस इज यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3. तो दिस इज अ 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन नॉन. इज इट क्लियर? एनी डाउट बेटा? सब सही है? समझ में आ रहा है सबको? नाउ यस, आर यू एबल टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड 2 4 डाइमिथाइल 3 पेंटेनॉन? आर यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर 2 4 डाइमिथाइल 3 पेंटेनॉन? Draw the structure of 2 4 dimethyl 3 pentanone. Done, ma'am. Done. 3 pentanone. Done, Just okay. कोई प्रॉब्लम? 3 पे ऑन लगाया. No, ma'am. दिस इज स्ट्रक्चर. no, ma'am. स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ. दिस इज स्ट्रक्चर. यहाँ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है. आपने 5 कार्बन बनाए होंगे. थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड हो और सेकंड और फोर्थ पे मिथाइल ग्रुप. इज इट क्लियर? यस, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ Yes, तक ma'am. क्लियर है सबको? ओके. नाउ अब स्ट्रक्चर से पहले अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, वो आपने उनके स्ट्रक्चर्स बनाने. ओके, तो आप एक क्वेश्चन लिखिए जल्दी से. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड. हरी अप, हरी अप. ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लीज draw the structure of following compounds. I'm writing this. Draw the structure of following compounds. Now I'm giving the compounds. First compound is draw the structure of following compound. 2-hydroxy 2-hydroxy cyclopentane carbaldehyde. Okay. Number 2, second compound 3-hydroxy 3-hydroxybutanol. Third compound is alpha-methoxy
propanone aldehyde. Fourth is 4-oxo-pentanol. Fifth compound is 4-fluoroacetophenone. मैम थर्ड कंपाउंड क्या है? Alpha methoxypropane aldehyde. Acetophenone. And last 6, draw the structure of di-secondary butyl ketone. Yeah. I'm done. Yes, ma'am, done. Yeah. Just a minute. Akash, Avi. Okay. Take time. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 compounds are there. अब उसके बाद मैं किसी को भी प्रेजेंटर बना दूंगी, मुझे ड्रॉ करके दिखाएंगे आप. जिसको भी मैं नाम दूंगी उसे मैं प्रेजेंटर बना दूंगी, एंड देन यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑन बोर्ड. ड्रॉ इज इट कैसे? क्लियर? स्ट्रक्चर बनाना है आपको, मैं प्रेजेंटर दूंगी आपको, बना के दिखाना. नहीं मैम, आप बट खुद मैं प्रेजेंटर हो जाओ. मैम पेन नहीं है ना हमारे पास, मतलब आप माउस से बना दीजिए, या आप मैम जिसको बोलूंगी वो अरे बताता हाथ जाएगा, से मैं बना बना सकते हैं, हाथ से हाथ से भी बना सकते. ठीक है, चलिए देखते हैं. ओके, पहले ड्रॉ कर लीजिए सब. यस, ऑल ऑफ यू हैव ड्रॉन. 1 minute. Okay. I will take a name of anyone out of 30. जो नहीं बताएगा मैं उसका नाम नोट करती हूँ, या कुछ है कि इसका इंटरनल जो है वो कुछ नहीं है, आज की डेट में उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. इज इट क्लियर? I have to note it down the name. Okay, all of you have done? यस मैम. Tell me. Yes, ma'am. तो 2 की आवाज ही आई है 30 में से, आउट ऑफ 30. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 3, 4. बाकी out of 30 only 4 are active. Where are the others? मैम मेरी आवाज आ रही है? Oh, yes, ma'am. आ रही है सडनली. मैम मेरा भी Okay. हो गया. ओके, गुड. I'm done. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं 1 by 1 कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स. नाउ यस, फर्स्ट अब मैं नाम ले रही हूँ कि आपने जो है मुझे बताएंगे कि कैसे आप ड्रॉ करेंगे. देन आई विल ड्रॉ इट, और बताएंगे आप मुझे कैसे. नंबर 1 मैं आपका नाम लेती हूँ, अविका. अविका, 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 आर यू हियर? Avika, I have noted down your name. No response in class. Then Kushi. Yes, ma'am. Kushi. Yeah. बताइए मैं Hello, ड्रॉ कैसे yes, करूँ, कैसे ड्रॉ करा? 2, हाँ, यस. 2-hydroxycyclopentane Ma'am. कार्बेल्डिहाइड कैसे बनाया? Ma'am, first we will make a cyclic compound which will be having 5 carbon. Then Okay. on first one we will write down CHO. We will write extended, and then we will write on second one. We will write hydroxy group, that is OH. ओके ओके, इट मीन्स दिस इज अ कंपाउंड. ये आपने 5 कार्बन का साइक्लोपेंटेन बनाया, सबसे ऊपर लिख दिया CHO, और सेकंड पोजीशन पे बना दिया आपने OH. यस, दिस इज द वे. खुशी? Yes, ma'am. गुड. Yes, ma'am. या ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक है.
This is a 2-hydroxy cyclopentane carbonaldehyde. Okay, all of you are okay with this? Now yes, Pratham. यस मैम। सेकंड कंपाउंड कैसे बनाया है जल्दी बताइए। 3-hydroxy butanol. मैम इसमें ड्रॉ कर दूं? हाँ ड्रॉ कर दो, मैं प्रेजेंटर हूँ तो बना दूं आपको प्रेजेंटर। हाँ मैम। Okay, good, very good, Pratham. Just a minute. I am making you a presenter. Pratham Roy. Make as a presenter. Very good, Pratham. Yeah, चलिए दिखाइए आप. Now you are a presenter. मैम इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा। मैं आपको ऐसे बता दूं? ऑप्शन नहीं आ रहा बेटा, बोलो। हमने तो कहा था आप बताओ, चलिए बताइए आप। CH3 Okay. वो डैश CH और उसके ऊपर OH, इसके ऊपर OH। हाँ फिर CH2, ऊपर लगाओ नीचे लगाओ। सिंगल बॉन्ड CH2, फिर हाँ। सिंगल बॉन्ड C, और मैम वो डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड OCH, H। हाँ This is 1 2 3 4. Yes, बिल्कुल ठीक है प्रथम। ठीक है प्रथम, गुड। दिस इज 4 कार्बन। थर्ड पोजीशन पे आपने क्या करा यहाँ पर? यू हैव मेड अ गुड एट 4th पोजीशन। यस, ओके, क्लियर। ओके प्रथम। नाउ नेक्स्ट, गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा प्रथम ने। नाउ थर्ड कंपाउंड 4-methoxy propanaldehyde। इसके लिए मैं बोल रही हूँ सताक्षी त्यागी। मैम वो सताक्षी अल्फा है त्यागी। शायद। मैम वो अल्फा है, 4 नहीं मैम, वो हाँ, अल्फा। अल्फा मिथॉक्सी। यस, अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेनल्डिहाइड। सताक्षी त्यागी। यस, सताक्षी त्यागी, आर यू हियर? बेटा मैं नोट कर रही हूँ नाम। मैंने अविका का नोट करा, प्रथम के आगे राइट लगाया। सताक्षी त्यागी, आई एम राइटिंग योर नेम। नो रिस्पॉन्स। सताक्षी, या सताक्षी, हाउ टू प्रिपेयर दिस, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा मिथॉक्सी? आप चैट बॉक्स में लिख रही हैं मुझे, चैट बॉक्स में चलिए आंसर दीजिए मुझे। सताक्षी चैट बॉक्स में आंसर बना के दीजिए अगर आपका माइक नहीं वर्क कर रहा है तो। ओके, सोमजीत रॉय, सोमजीत रॉय, यस, चलिए बताइए हाउ वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। थर्ड वन अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेनल्डिहाइड। मैम थर्ड वाले के लिए सबसे पहले CH3। CH3। मैम CH3 स्लैश CH। मैम फिर ऊपर एक बॉन्ड बना के OCH3, CH के ऊपर एक बॉन्ड बना के ऊपर CH3, ठीक है, वो CH3। मैम फिर ऊपर डैश डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और फिर H। यस, 1 2 3 3 कार्बन। प्रोपेन का नाम आ रहा है, मैंने अभी आपको बताया था, कॉमन नेम में कहते हैं इसे। एल्डिहाइड है तो CHO, 1 2 3 3 कार्बन का CHO। और अल्फा पोजीशन कौन सी होती है फंक्शनल ग्रुप का? नेक्स्ट कार्बन इज अल्फा, तो अल्फा पे मिथॉक्सी आ गया। दिस इज अ थर्ड कंपाउंड। ओके, फोर्थ कंपाउंड, गुड। याशिका, फोर्थ कंपाउंड बताइए। यस मैम। फोर्थ कंपाउंड, हाउ टू ड्रॉ द मैम, फोर्थ वन? हाँ मैम, पहले हम पेंटेन बनाएंगे एंड फिर फर्स्ट वाले पे OH एल्डिहाइड एंड फर्स्ट वाले पे, फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड लगाएंगे। अच्छा फर्स्ट पोजीशन पे लिया, 1 2 3 4 5 लगाया, फर्स्ट पोजीशन एंड पे लिया। फोर्थ पोजीशन पे OH। OH, ऑक्सी ऑक्सो। है ना? हाँ यस मैम। ऑक्सो क्या होता है? डबल बॉन्ड O। सॉरी, हाइड्रोक्सी होता है बेटा। हेलो। ओके ओके मैम। ओके, ओके मैम। हेलो। कौन है ये?
Now next Yes, is ma'am. Can you hear me now. Yes, Satakshi, I can now? hear you now. Draw the structure of fifth compound. Satakshi, how can we draw the structure of fifth compound? Satakshi, I know that there is some problem in your mind. Yes, ma'am. Yeah, no problem, beta. Draw the structure and write it in chat box. Okay, no problem. Because I have taken your name, तो आज की डेट में मैंने लिखना है कि इतने इतने बच्चों से मैंने पूछा, आपने आंसर दिया या नहीं. Is it clear? याशिका ने दिया था अभी आंसर. Just a minute. Now fifth one, गर्भ. Fifth गर्भ, आप Ma'am, बताइए fifth कैसे बनेगा? one. हाँ, fifth one गर्भ. Ma'am, which तो साक्षी फिफ्थ आप ड्रॉ करके दो चैट बॉक्स में. गर्भ आप मुझे बताइए. गर्भ Yes, ma'am. फिफ्थ का स्ट्रक्चर. हरी आप. मैम एक बेंजीन रिंग बना दो. ओके, पहले बेंजीन रिंग बनाया, ठीक है. फिर क्या बनाए? मैम नीचे फ्लोरीन फोर्थ पोजीशन पे. यहाँ पर है फोर्थ पोजीशन हाँ. पे फ्लोरीन. और ऊपर डबल बॉन्ड नहीं कार्बन. हाँ, फिर डबल बॉन्ड O और एक CH3. और सी. वेरी गुड. दिस इज एसिटोफिनॉल और फोर्थ पे फ्लोरीन. वेरी गुड. सिक्स कंपाउंड. चलिए आद्विक, सिक्स कंपाउंड बताइए कैसे बनाए. आद्विक, यस मैम. या सिक्स कंपाउंड बताइए. मैम 6 वाला. सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन. मैम 6 वाला ही नहीं आया. था 6 वाला. ओके, मैं दिखाऊं? ओके. आकाश, चलिए आप बताइए. मैं कैमरा पे दिखा दूं आपको? अच्छा, दिखाओ कैमरा पे. ओके मैम, एक मिनट. हाँ, आपको दिख रहा है? क्लियर नहीं आ रहा मुझे. हाँ, अब आया, मैम. आ रहा है. दिस इज 1 2 3 CH2. मैम वो हाँ, कीटोन, मैम कीटोन से डाई डबल बॉन्ड और डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. आकाश, बिल्कुल ठीक. थैंक यू मैम. बिल्कुल ठीक है. नाउ डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन. कीटोन है तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैं ड्रॉ कर रही हूँ आपको. यहाँ पर आकाश ने बना के दिखाया, बिल्कुल सही. मैं आपको ड्रॉ कर रही हूँ. यहाँ पर देखिए, अधिक ध्यान से देखिएगा बेटा. C डबल बॉन्ड O. दिस इज फॉर अ कीटोन. डाई सेकेंडरी. अब सेकेंडरी आपको मालूम है कौन सी पोजीशन होती है जिसमें कार्बन अटैच होता है टू डिफरेंट कार्बन से. तो इसका ना ये कार्बन दो कार्बन से अटैच होगा ही, CH3 और एक C से. लेकिन ये कार्बन नंबर बना 3 का, तो आपको 4 कार्बन बनाने के लिए यहाँ बनाना पड़ेगा. एंड दिस इज ब्यूटाइल. आप देख रहे हैं क्योंकि ये क्या हो गया, 4 कार्बन, 1 2 3 4. बट दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल. 4 कार्बन बट इट इज सेकेंडरी. और डाई है, 2 बार हो रहा है, तो वी कैन राइट इट CH, CH3, CH2 and this is CH3. Advik, now clear? Di-secondary butyl ketone. Yes ma'am, now clear. Now clear? Okay. So I think structures are clear to all of you. How to draw the structure? Is it clear? Yes, tell me everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now yes. अब हम आते हैं structure of carbonyl group. How to draw the what is the how we can compare the carbonyl group. Okay, carbonyl group is present in aldehyde, ketones as well as in a carboxylic acid. So we have to now compare carbonyl group structures. Now first I am sharing a slide, structure of the carbonyl group. Now yes, are you able to see the slide? Yes, ma'am. Okay. Now structure of carbonyl group. Now carbonyl group. In carbonyl group, कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड O है, तो वो डबल बॉन्ड हो गया, तो इट इज ए sp2 हाइब्रिडाइज कार्बोनाइल कार्बन. और कार्बोनाइल कार्बन sp2 है तो वो ट्रायंगल शेप में होता है. इट इज इन अ ट्रायंगल शेप. CO बॉन्ड इज पोलराइज्ड ड्यू टू अ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन देन कार्बन. कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो ड्यू टू अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड O पे माइनस चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा. That is a one important things for a carbonyl group. So
कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन जो है वो क्या बन जाता है आपका कार्बोकेटाइन एंड ऑक्सीजन कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल क्या बन गया आपका ट्रायंगल कोप्लेनर। ट्रायंगल प्लेनर है, एंगल इज 120। ओके, व्हाई ट्रायंगल प्लेनर? ड्यू टू अ कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नाउ यस, अब लिखिए मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। हरी अप, write the methods for the preparation of, adding the method of preparation of aldehyde and ketones. First method हम करेंगे by the oxidation of alcohol. First method is by oxidation of alcohol. चलिए बताइए अल्कोहल से एल्डिहाइड हम कैसे बनाते थे? हरी अप, अभी अल्कोहल चैप्टर में हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कैसा, स्ट्रॉन्ग या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? स्ट्रॉन्ग। आकाश, माइल्ड माइल्ड स्ट्रॉन्ग में तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता था कार्बोक्सिलिक एसिड में। ओके, yes, लिखिए जल्दी से। Okay. ओके, जल्दी से लिखिए फर्स्ट मेथड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। मैं बोर्ड दिखा रही हूँ अब आपको। अब आपको फर्स्ट मेथड दिखाया, नाउ आई एम कमिंग टू माय बोर्ड, और बोर्ड पे लिख रही हूँ, वो नोट करेंगे आप। ओके, नाउ शेयरिंग माय बोर्ड। ha, board is here. Ah, yes, I'm writing. Area heading देखिए, method of preparation of aldehyde and ketone. First one is oxidation of alcohol. First is oxidation of alcohol. और oxidation of alcohol is RCH2OH. किसके मेथड से है? Method of preparation of aldehyde and ketones बेटा. ओके, First method, oxidation of alcohol. Alcohols by using a PCC. ठीक है, by using a PCC or CrO3. Primary alcohols are converted into a aldehyde, whereas secondary alcohols are converted into ketones. याद है? Tell me बेटा, Yes, ma'am. this is Yes, yes ma'am. this is the important thing. PCC और CrO3 से करा, they are converted into a ketones. So we can prepare aldehyde and ketones by the oxidation of alcohols. Okay, this is the reaction. कोई भी reaction हो सकता है, मैंने एक जर्नल लिखा है RCH2, तो आपको ये याद होना चाहिए, primary alcohols are converted into aldehyde and secondary alcohols are converted into ketones. All of you have written? Yes, tell me. All of you have written first. Okay, okay. Now second method. Ma'am. Yes. Ma'am, oxidation of alcohol में weak oxidizing agent use होते हैं ना? हाँ जी, और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? पीसीसी और CrO3, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ओके, मे आई रब इट? Yes, ma'am. yes ma'am. Okay. Now write the second method. Second method is that is known as a dehydrogenation of alcohol. Second method is dehydrogenation of alcohol. जरा बताएगा कोई मुझे, ये कौन सा रिएक्शन किया था हमने डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाए थे? टेल मी, dehydrogenation of alcohols, which reaction, or give me a name of reagent which is used for the preparation of aldehyde and ketones? Yeah, give me a. मैम H2SO4 यूज करते थे ना हम लोग. ना, dehydrogenation, that is a dehydration. मैम वो तो ईथर बनता है ना उससे शायद. हाँ, किसका रिएक्शन किया था? अब यार देखो, मैं यहाँ लिखूंगी, एकदम याद आ जाएगा. प्राइमरी एल्कोहल्स when they are heated with copper at 573 Kelvin
converted into aldehyde. याद आया? दिखवाया था ये रिएक्शन, Yes, चेक करो. ma'am. Yes, ma'am. रिएक्शन Yes, देखा जैसा तो लग रहा है बट Yes. देखा हुआ लग रहा है, पढ़ोगे घर जाके दोबारा से तो याद आएगा ना. घर पे बैठ के पढ़ा भी तो करो क्लास के बाद. That is a copper with 573 Kelvin converted into a RC double bond OR dash. So this is a second method, dehydrogenation of alcohols. Okay. These two reactions we already studied in our alcohol chapter. These are the properties of alcohol. Primary alcohol converted into aldehyde. Secondary alcohol is converted into or oxidized into a ketone. Yes, done all of you? Yes, ma'am. Yeah, tell. Okay. Shall I rub? Shall Yes, I rub ma'am. it? Yes, Now ma'am. the third method. Okay, third method. Now the third method is from hydrocarbon. अभी आपको स्लाइड दिखाऊंगी, स्लाइड में भी मैंने यही सब लिखा हुआ है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. अब हाइड्रोकार्बन्स में देखिए क्या होता है. हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले हम मेथड जो यूज करते हैं, नंबर 1 मेथड फ्रॉम ओजोलिसिस ऑफ एल्कीन. ओजोलिसिस ऑफ एल्कीन. अब ओजोलिसिस आपने पढ़ा था 11. मैं मैम दोबारा से डबल यहाँ बॉन्ड पे O3 लगा देंगे. डबल बॉन्ड, हाँ. यस, देखिए यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये कंपाउंड है. अगर हमारा रिएक्शन कराया हमने ओजोन के साथ O3 के साथ, देन ओजोन करता था. यस, ओजोन जो था वो कहाँ जाता था? डबल बॉन्ड वाले पे पास जाता था. डबल बॉन्ड पे. याद है ऐसे बनता था ओजोन ने कंपाउंड. ये आफ्टर दैट इट विल टेक टू दिस पार्ट. करते थे ये. हो जाएगा. प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर, इट इज कन्वर्टेड इनटू अ दो अलग अलग बनते थे. प्लस CH3 CHO. Yes. CH3 CHO CH3 CHO. Write it. Hurry up, write this reaction. Done, ma'am. मैम एक चीज पूछनी है. यस बेटा बोलो. मैम जैसे डिहाइड्रोजनेशन में ऑफ अल्कोहल में हमने कॉपर का पढ़ा था, उसमें 573 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए होता है. तो मैम उसमें 573 अगर हम नहीं लिख के आए पेपर में तो मार्क्स कटेंगे या फिर क्या इग्नोर करते जाएगा? यस यस, नहीं मार्क्स कटेंगे. कॉपर विथ 573 क्योंकि अलग अलग आप यूज करेंगे. अगर कॉपर लिखेंगे नहीं, कॉपर विथ 573 क्योंकि ये रिएक्शन मे बी फ्रॉम अ AG आल्सो. सिल्वर डाल के भी हो सकता है, लेकिन सिल्वर में टेम्परेचर अलग है. ठीक है, सिल्वर कैटलिस्ट आपके कोर्स में नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखवाया, बिकॉज कॉपर इज गिवन एट अ पर्टिकुलर बट द सिल्वर इज देयर, तो टेम्परेचर डिफरेंट हो जाता है. तो इट मीन्स द टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. ओके, so this is a one example of ozolysis of alkene, and the number 2 is that is from a alkynes. हरी आप लिख लिया सबने ये मेथड from Yes, ozolysis? हम एक सेकेंड. Okay. Ma'am, in the arrow above the H2, but right? Harshit, I am not able to hear you properly. मैम H2O के ऊपर क्या लिखा हुआ है एरो पे? Zn, zinc. Yes, Karandeep, done. Harshit, done. Yes, ma'am. Okay.
Yeah. Shall I rub it? Karandeep, Harshit, you have done it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now next is हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है फ्रॉम अ एल्काइंस. अभी आपने किया था एल्कीन से, नाउ वी आर डूइंग फॉर अ एल्काइन. अब देखिए एल्काइंस भी वी डिड इन 11th क्लास. फ्रॉम एल्काइन, एल्काइंस मींस ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए बहुत जरूरी है व्हेन वी हैव अ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज एल्काइन. Alkyne when react with a H2SO4 and HgSO4. This is the important part. Hg2 plus लिखा हुआ मिलेगा आपको एग्जाम में, या HgSO4. कई बार हम खाली लिख के देते हैं Hg2 plus. Only in a presence of mercuric sulfate, this alkyne, ethyne, this is important line, ethyne is converted into acetaldehyde, CH3CH2. But the carbon number more than 2, if it is CH3, C, triple bond CH and react with H plus or Hg2 plus, it is converted into ketone, CH3, C double bond O, CH. इसका मतलब only 2 carbon, ethyne is converted into aldehyde, others carbons are converted into ketone. This is a very, very important line. Listen carefully and you have to note it down there. Ethynes are converted into aldehyde, but other members of the alkyne groups are oxidized or converted into a ketone. Is it clear? Yes? Tell me better, clear to all of you? Am I audible? मैम क्लियर हो गया, एक्शन लिख रहा हूँ. Okay. के नीचे मर्क्यूरी सल्फेट है. Hg2 plus लिखा हुआ आता है, that is also a mercuric sulfate. HgSO4. कई बार हम एग्जाम में लाइन रिपीट कर दीजिए. Okay, listen carefully. The ethyne is oxidized into aldehyde, but the other members of the alkyne group are oxidized into ketones. When they react with the H2SO4 and HgSO4. Okay? Yes, done? Clear to all of you? Yes, ma'am. मैम ये सेकंड वाले रिएक्शन 2 के बाद क्या लिखा है? एक मिनट, रिएक्शन की कहाँ पर? Hg2 plus के बाद CH3 प्लस है. this is Hg plus, Hg2 plus. Yes, this is 2 plus. Okay. This is 2 plus. ये पूछ रहे हो ना? Yeah. Yeah. This is Yes, H ma'am. plus. This is Hg2 plus. Okay. CH3 C double bond O CS. Okay. Ketones are there. Yes, all of you have done. Shall I rub it? Yes. Yes, ma'am. Okay. Okay. Now I delete all. Now come to this. This is the one part of this. कि आपका एक पार्ट था जिसके अंदर आपने क्या क्या किया कि आपने रिएक्शंस करे किसके साथ? प्रिपरेशन में फर्स्ट प्रिपरेशन करी हमने एल्कोहल्स के साथ. After that we preparation of a dehydrogenation of alcohol. Then we have a preparation of a aldehyde and ketone from a hydrocarbon, ozolysis and hydration of alkyne. Yes. Okay. We have done these three methods. Clear? These three methods: oxidation of alcohol by dehydrogenation of alcohol, and third is from hydrocarbon, ozolysis and the hydration of alkene. Okay. So these are the method. Oxidation, प्राइमरी अल्कोहल्स आर CrO3 से कन्वर्ट हुए CHO में. ये कोई कंपाउंड है, जो भी कंपाउंड होगा कन्वर्ट होगा OH into CHO.
सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट हो गया कीटोन्स में. यू हैव ऑलरेडी डन दिस ऑल दीज रिएक्शन. नाउ डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स में कॉपर विद 573, कॉपर विद 573 टर्शियरी अल्कोहल जो है वो डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता क्योंकि ये कन्वर्ट होता है एल्कीन में. नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम ओजोलिसिस. आपने अभी अभी ये ओजोलिसिस किया, मैंने यही वाला दिया था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ओजोलिसिस, और ये बना इथेनॉल एंड वन इज मीथेनॉल. अच्छा हमने ब्यूटीन का कराया था, मैंने ब्यूटीन का कहा था. दिस इज एग्जांपल ऑफ प्रोटीन एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ 2 मिथाइल प्रोपीन. तो यहाँ पर आपका एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है. फर्स्ट राइट यू कैन एबल टू दिस. ये दोनों रिएक्शंस आपने 11th में यू हैव डन इट. You have done these two reactions in your 11th class. Okay. And the last is that is from a hydration. Hydration आपने करा alkenes का. Ethynes are converted into ethanol, but propyne and the other members are converted into ketones. Just now you have completed this job. Yes, tell me yes or no. All of you have done up to this. Up to यहाँ तक part clear है सबको या नहीं? First tell me. Tell me yes or no. Yes, ma'am. Are you Yes. okay? Yes, Clear? ma'am. Yes, clear to all of you? Okay. Now the next method is preparation of aldehydes. Mainly हम यहाँ preparation करेंगे aromatic aldehydes. और aromatic aldehyde में सबसे पहले method होगा हमारा acid chloride से, this is कहते हैं Rosamond reaction. Number 2 होगा nitriles और ester से, और number 3 होगा from a hydrocarbon. Hydrocarbons में हमारे पास different है. तो मैं अब आपको लिखवा रही हूँ, नोट करिए जल्दी से. अब ये वाला नोट करेंगे, method of preparation of aldehyde from acid chloride. अब स्टार्ट करिए फ्रॉम एसिड क्लोराइड रोजेमंड रिएक्शन, और इस रिएक्शन को एज इट इज नोट कर. हरी अप, नोट डाउन दिस रिएक्शन. मैम ये मेथड जो ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें हम लोग अभी फ्रॉम एल्कीन्स और ओजोनोलिसिस वाला सर्व कर रहे थे, ये उसके अंडर ही है ना? नहीं, नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन. ओके दिस मैम. वन इज फोर्थ. ठीक है, क्योंकि अब नया प्रोसेस शुरू हो गया. दिस इज द फोर्थ वन रिएक्शन फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स रोजेमंड रिडक्शन. नाम ऐसे ही लिखेंगे जैसा बोर्ड पे लिखा है, बिल्कुल एज इट इज नोट कर लीजिएगा. बेंजोनाइल क्लोराइड when react with the H2PdBSO4, it is converted into benzaldehyde. Yes, done. Yes, ma'am. Okay. Others? Yes, ma'am. Done. Okay. Now, second method of this from nitriles and esters. Second method is from nitriles and esters. Nitriles के लिए reaction RCN when react with the SnCl2, then there is a formation of RCHO, and this reaction is known as a Stephan reaction. But when RCN is react with the aluminium hydrogen isobutyl bromide, dibal, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना ALH ब्रैकेट में IBU, this is a full form है dibal. Dibal है, full form क्या होती है dibal की? That is a diisobutyl aluminium hydride. Diisobutyl aluminium hydride. इसको रिएक्शन कराएंगे, वो भी कन्वर्ट होता है RCHO. This is the ALHB. This is a diisobutyl aluminium hydride. Oh, hydride नहीं लिखा, H. Aluminium hydride. And this is the esters. When the esters undergo with a dibal, they are also form a aldehyde. So write this reaction under a next heading 5. Fifth reaction note करिए from nitriles and esters.
from nitriles and esters. Yes, done all of you? Yes, ma'am. Second reaction. Up to this, nitriles and esters, all of you. बेटा सब बोलो. Yes, ma'am, done. Tell me who's done. Everyone has done? Yes, ma'am. Okay. मैम Yes, मैम बेटा बोलो. कंटिन्यू कर रहे हैं बहुत देर से, थोड़ा सा एग्जॉस्ट काइंड ऑफ हो गया है, तो आप बस प्लीज. बस अब ओवर कर, अब ओवर करिए. अब इससे ज्यादा लिखवा भी नहीं. इसके बाद रोक. ठीक है, अब रोक दे रही हूँ, अब नहीं लिखवा रही. ठीक है, आई नो दैट कंटिन्यूएशन में हो रहा था, आई नो दैट, तो मैंने अब इसके बाद लिखवाना भी नहीं था. नाउ यस, आई स्टॉप दिस. नाउ योर होमवर्क इज, अब ऐसा है आपका टाइम